Rights are basically claims of a person over the society and over the government. Which are sanctioned by the law. Rights need to be sanctioned by the law so that, or protected by the law, so that people will follow it and no one will violate the rights of the other person. So, after discussing the base of the rights and definition of the rights, we can say there are basically two main characteristics of a right. First, that rights are claim of a person which are equally possible for others. As I said, rights are the claim of a person over the society and over the fellow being, which means that they are equally possible for others. Another important characteristic of rights is rights are not unlimited. If rights are unlimited, then a person may convert it into a monarch. A person can violate the rights of other person. He can move into the privacy or rights of any other person. So this is necessary. The right should be, there should be limit on the rights, and right should not be unlimited. Now we need to discuss that why we need rights. First of all, rights are important for the existence of democracy. Another thing, rights always protect minority from the oppression of majority. Some rights need to be placed higher than the government, so government will not misuse their power and the rights. So rights always protect people from the government. And another thing we can say, that in another word, that rights don't allow government to violate people's rights. Now we will discuss that what are the fundamental rights. Fundamental rights. Some rights are fundamental and basic to our life, so they have been given a special status in our constitution, and they were known as fundamental rights. So some rights are basic to our life, and that is why they have given a special status in Indian Constitution. They are basically 6 in number. For example, first, right to equality. Right to freedom. Third, right to freedom of
Fourth, cultural and educational right. Fifth, right against exploitation. And the last one, most important, right to constitutional remedies. This right to constitutional remedies is so much important that Dr. B.R. Ambedkar called this right heart and soul of the Indian Constitution. So dear students, today we basically discuss about the base of rights, definition of rights, characteristics of rights, why do we need rights, and fundamental rights. In later class, we will discuss all these 6 fundamental rights in detail. Thank you. By now, all of you have gone through the video. Now I am sharing some slides with you. So these slides will help you to write down the answers, and at the end of the slides you will be having some questions for the assignment also. So learning objectives will be same, like define the rights, understand the characteristics of rights, explain the needs of right, and then the fundamental rights. Fine. Or at the same time I will try to explain some points which were basically not covered earlier through the video. So let's start. What are rights? That every society makes certain rules to regulate our conduct. They tell us what is right and what is wrong. जो हमने वीडियो के अंदर बात की है कि some claims of a person, तो जो claim होंगे सोसाइटी के ऊपर, they are part of the rules created by the society, जो हमेशा क्या होंगे कि हमारी सोसाइटी में सही होंगे, right होंगे, ठीक है। और जो ये डिफरेंस करने में हेल्प करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जाहिर सी बात है कि अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं, दैट राइट शुड बी राइटफुल, तो वो जो हम बात करते हैं इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा काम, रूल या कंडक्ट जो गलत होगा उसको सोसाइटी कभी अप्रूव सैंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो दे आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द सोसाइटी, एंड दैट आई हैव डिस्कस इन द like first point only, that recognized by the society as rightful become the base of right. जो सही लगता है सोसाइटी को वही राइट का बेस बन जाता है। So right is possible when you make a claim that is equally possible for others. कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी चीज को अपना राइट बताने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने लिए एज अ राइट उसकी डिमांड करता हूँ, तो दूसरे आदमी का भी वो ही राइट होगा, ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अभी पढ़ चुके हैं पहले कि राइट्स आर बेसिकली इक्वली पॉसिबल फॉर एवरीवन, कि जो राइट या जिस चीज की हम क्लेम करते हैं सोसाइटी के ऊपर, वो सेम क्लेम दूसरे आदमी का भी होता है और वो भी इक्वली उस चीज के लिए क्लेम करेगा, इक्वली उसका हकदार होगा उसको पाने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस कर लें, ये जो हमने डिस्कस किए हैं 3 पॉइंट, तो हमारी राइट की डेफिनेशन आ जाती है दैट राइट्स आर क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगली स्लाइड में भी हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। वो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए या राइट की डेफिनेशन जो है कि दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन and they are recognized by the society and they are sanctioned by the law. Sanctioned by the law जो है हमने पहले भी आपको बताया वीडियो के थ्रू कि sanctioned by law मतलब कि they are approved by the law. लॉ है जो कानून है, उसने उनको अप्रूव कर दिया है, उनको एक ऑफिशियल परमिशन दे दे कि हाँ ठीक है, क्योंकि कानून से हमें अप्रूव करवाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, और अगर कोई हमारे राइट का वायलेशन करता है तो उस लॉ की हेल्प से, क्योंकि कानून ने उसको क्या किया है, सैंक्शन किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कानून तोड़ेंगे या कोई भी चीज को सैंक्शन किया हुआ कानून ने, तो हम फिर कानून की मदद से हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है हमारी, कि अगर हमारे कोई राइट जो है किसी भी तरह से एक राइट को या ज्यादा राइट्स को हमारे कोई वायलेट करता है, तो फिर हम उनको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट वी विल सी फर्दर इन दिस चैप्टर एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। Now let's talk about the characteristics of rights. A right is a claim of an individual against the society. ये हम पूरा वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. That will help you. Why I am sharing this? मैंने शुरू में बताया था कि this will help you to write down your answers. Right is a claim of the individual against the society. Rights are not unlimited. यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Rights are not unlimited का मतलब ये है कि rights are limited.
कि राइट्स को हम अनलिमिटेड कभी नहीं छोड़ सकते। अगर अनलिमिटेड होंगे तो उसकी क्या होगी, एक कैप तो हमें लगानी पड़ेगी ना। अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लाइक राइट टू फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे कोई भी हमारे घर में आके बैठ जाए बोले कि मैं तो राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो अनलिमिटेड होगा तो क्या हो जाएगा कि एक आदमी के राइट फिर दूसरे आदमी के राइट के साथ क्लैश करेंगे, तो इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, इसका मतलब ये होता है कि राइट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, उन पर एक कैप लगी होती है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, बर्थडे पार्टी हमारी चल रही है या हमारे घर में शादी है तो हम डीजे बजा रहे हैं, ठीक, तो उसकी हमने एक लिमिट रखी हुई है कि रात को 10 बजे तक आप जो है डीजे बजाइए, गाने बजाइए, डांस कीजिए तेज आवाज में, जो भी हम बजाते हैं डीजे। तो 10 बजे के बाद हमने उसको मना किया कि ठीक है, पड़ोस में कोई बच्चा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसको सोना होगा, 10 बजे के बाद अपना आराम से सो सके, कोई बच्चा होगा जिसका एग्जाम भी हो सकता है नेक्स्ट डे, तो उनको भी जो है कि पूरी तरीके से उनके भी जो राइट है उस पे से उसमें भी किसी तरह कोई इंटरवेंशन ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो हमारा आपस में एक दूसरे के राइट को लेकर। तो इसीलिए एक लिमिट लगा दी जाती है हर बार हर राइट के साथ, ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली जैसी सिचुएशन सोसाइटी में क्रिएट ना हो। देन यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट्स इंप्लाइज ड्यूटीज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कानून से राइट्स की बात करते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं जो राइट्स के साथ ऐड होती हैं, जो राइट्स के साथ साथ ही चलती हैं। जैसे भी मैंने बताया कि चलो ठीक है, हमारा राइट है कि हम अपना शादी पार्टी है या बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर हमारी ड्यूटी भी है कि जो नियम कायदे कानून बने हैं कि 10 बजे के बाद हमें उसको रोक देना है, तो फिर हमें उसको भी फॉलो करके इस चीज को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी ये हमारी ड्यूटी है राइट के साथ, ठीक है। तो ये वी शुड फॉलो दी ड्यूटीज ऑल्सो, जो हमेशा राइट्स के साथ आती हैं। राइट्स कीप ऑन चेंजिंग, कि कुछ समय से के साथ साथ क्या होता है कि कुछ राइट्स हमारे जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते हैं, इसको हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। जैसे अगर मैं बात करूं राइट टू इंफॉर्मेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो राइट टू इंफॉर्मेशन उस समय पर उसका हिस्सा नहीं था। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और हमें लगा कि लोगों को जो है कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास एक राइट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट राइट है, जानकारी होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों से हम जानकारी ले सकें, तो राइट टू इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर दिया। जैसे अभी अगर मैं बहुत रिसेंट राइट की बात करूं जो आज के समय में बात होती है, दैट इज राइट टू इंटरनेट, कि इंटरनेट भी क्या है, वो एक बेसिक राइट में आदमी का आना चाहिए, जिसकी वजह से आदमी को जो है कि हर समय कुछ ना कुछ इंटरनेट तक एक्सेस बनी रहे उसकी। तो आजकल ये एक राइट हो सकता है कि फ्यूचर में हमें राइट टू इंटरनेट भी मिल जाए, या इसके अलावा और भी धीरे धीरे कुछ राइट्स जो हैं टाइम के साथ साथ जब उनकी जरूरत पड़ती रहेगी तो वो जो है ऐड होते रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है दैट राइट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स। कुछ पॉइंट्स हैं जो वो पीछे वीडियो के अंदर कवर नहीं किए गए थे, तो आई एम कवरिंग हियर। चलिए अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड राइट्स। ठीक है, ये वीडियो में हमने अच्छे से कवर किया है, बट अगर व्हेन यू नीड टू राइट द आंसर्स तो आप इन चीजों की जो है हेल्प लेंगे। नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यस, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर राइट्स नहीं होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर राइट्स नहीं है, हम व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ चुके हैं, वो गवर्नमेंट क्या होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, देन इट मे बी अ मोनार्किकल और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पर लोगों के बेसिक राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हमें राइट्स की आवश्यकता होती है। इसका जो सेकंड पॉइंट, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आगे, तो इसका मतलब होता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, इलेक्शंस। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट हम ये तय करते हैं कि कौन जो है पार्टी है या जो कौन लीडर है वो सरकार बनाएगा या पार्लियामेंट में जाकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठेंगे वहां पर। तो ये क्या हो गया, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि वो हमारी तरफ से रोल प्ले करेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में हम भी डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है। राइट्स की हेल्प से हम उन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। तो ये हमारी राइट्स की एक दूसरी नीड होती है कि हमें राइट्स की जरूरत क्यों होती है। राइट जो होते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वायलेटिंग द सिटीजंस बेसिक राइट्स। हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उन्हें सरकार से ऊपर रखेंगे तो सरकार भी उन राइट्स के दायरे के अंदर आएगी, सरकार उन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती, जिससे है कि सिटीजन्स की किसी भी राइट पर जो है किसी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और वो सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको जब उन्हें अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना होगा। राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। सेक्शन कई बार जो पावर में होता है या मेजोरिटी अगर होगी तो वो क्या करेंगे कि वो माइनॉरिटी या कुछ ग्रुप के राइट्स को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे।
उन लोगों को डराने की, धमकाने की, अपना काम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राइट्स क्या होता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि राइट्स सबके इक्वल है। जो क्लेम्स हैं दे आर इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स ऑल्सो। तो चाहे वो आदमी माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, तो सबके राइट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसकी वजह से जो मेजॉरिटी है वो कभी भी राइट्स का फायदा उठाकर या अपनी पावर का फायदा उठाकर माइनॉरिटी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती, उनको परेशान नहीं कर सकती, उनका शोषण नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के पास भी इक्वल राइट्स हैं, और अगर उनके किसी राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो जैसे मैंने बताया सैंक्शन बाय द लॉ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट विल टेक एक्शन। Things can go wrong when some citizen try to take away the rights of other people, but rights जो है इन्हीं चीजों को जो है कंट्रोल करके रखता है कि अपने राइट्स की हेल्प से कोई भी आदमी हमारे राइट्स को जो है ले नहीं सकता। ये ऊपर वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला जो पॉइंट डिस्कस किया है, तो उसकी हेल्प से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे हमने बताया आपको कि सम राइट्स आर वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल टू आवर लाइफ। इनके बिना हम क्या करेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दे आर वेरी फंडामेंटल, बेसिक टू आवर लाइफ। तो इसीलिए इनको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल स्टेटस जो है वो दे दिया गया। तो स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इन्हीं राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, टोटल वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको हमेशा ध्यान रखना, इट इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होगा उसका मतलब है कि हमें दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का राइट मिल जाएगा। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता है तो हम उसके अब इस राइट को हेल्प करके, इस राइट को इस्तेमाल करके अपने एक्सप्लॉयटेशन को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 5th इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Then we have right to constitutional remedies. This one is the one of the most important right we have. क्यों? जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे हम इसको समझ लेंगे। पर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक बात यहाँ कहना चाहूंगा मैं आपको कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूज द टर्म हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस राइट। ठीक है, वो क्यों होगा, कैसे है, दैट वी विल डिस्कस इन दी फर्दर वीडियो जो हम करेंगे। तो आज की वीडियो में अभी तक हमने यही टॉपिक डिस्कस किए हैं। हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर द असाइनमेंट। What are rights? What are fundamental rights? एक मार्क के क्वेश्चन है शुरू के 3। राइट डाउन द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 6 के 6 फंडामेंटल राइट आप इसमें लिखेंगे 3rd क्वेश्चन के अंदर। देन 4th यू हैव व्हाई आर राइट एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। तो जो नीड वाली स्लाइड है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हियर। एंड देन द लास्ट वन वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स की जो स्लाइड है वहां से आप इसको देखकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो ओके माय डियर चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।